Good morning, all. Can you hear me properly? Yes or no? Yes, Okay, thank you. yes, sir. Thank you. Okay. Okay, yeah. So we have started with Selenium setup, right? This process. So I'm expecting at least you have done the step number 3 and 4, that is just download. So I think you have downloaded your respective browser driver file as well. Okay. ऐसा मैं मानता हूँ कि आपने step 3 कर लिया है. If not, still I will show you exactly how what we can do. Okay. 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 So we are working with which version of Selenium? Selenium RC or ID? Selenium WebDriver. Selenium WebDriver. Okay. So we know to work with Selenium WebDriver, we require what? Jar files. Okay, right? With the help of jar files, what we can access? Class, different types of class. We can access packages. Why you are going not in root? We can access packages. With packages, what we can access? Class, Very good. With class, what we can access? methods, Method. Very good. Methods. With the help of methods, what we can do? Actions. Right? yes sir. Actions. If we are writing these actions in terms of code, simply what we are doing, we are trying to develop automation script. Okay? And on what basis we are doing it? Manual test cases. ये कंसेप्ट आपका चेंज नहीं होगा. ओके, इट्स वेरी सिंपल. सेलेनियम अभी जितना आपने जावा सिंपल तरीके से समझ लिया है, वैसे आपको सेलेनियम भी समझ में आएगा. जस्ट गेट द कोर ऑफ द थिंग्स. ओके, हमको जार फाइल्स के साथ काम करना है. मतलब हम एक रिस्पेक्टिव पैकेज देख सकते हैं. उस पैकेज में जितने भी क्लासेस है उसको हम यूज कर सकते हैं. उस क्लास के रिस्पेक्टिव जितने मेथड्स है उन मेथड्स को भी हम यूज कर सकते हैं. अब मेथड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स सिंपली वी आर ट्राइंग टू डू द एक्शन और ट्राइंग टू परफॉर्म एन एक्शन. एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मतलब हम अब क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू डेवलप द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट. और इस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट का बेस है आपके मैनुअल टेस्ट केसेस, है ना? जो आप मैनुअल टेस्टिंग के लिए लिखेंगे, फर्स्ट टाइम यू विल डू द मैनुअल टेस्ट केसेस. यू नो द रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन. डायरेक्टली हम ऑटोमेशन के लिए जाते हैं क्या? और वी आर ट्राइंग टू डेवलप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डायरेक्टली फ्रॉम द डे वन. नो राइट. No, sir. हमको कुछ बिल्ड मिलेंगे, बिल्ड 1 2 3 4. जब हमारा रिग्रेशन सूट एक प्रिपेयर होता है, ओके, देन वी आर ट्राइंग टू डेवलप द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट. और मैन्युअली तो चलते रहेगा आपका. फर्स्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरी बिल्ड we are validating our functionality by using the manual test cases. But parallelly, for the previous build, we are trying to develop the automation script. ये है यहाँ पे concept. इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. राइट? ओके. सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट. मतलब हम क्या कर रहे थे देख लीजिए. वी वर्क विथ जावा, राइट? सबने जेडीके के साथ जावा में प्रोग्राम लिखा होगा. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. So we were using which editor? Eclipse, right? Eclipse में आपने क्या किया था? सबसे पहले क्या क्रिएट किया था जावा के साथ काम करते समय? Project, Project. You have created project. Very good. Then what we have created after project? Package. Very good. Now then what we have created inside packages? Yes. Classes,
right? And in that class what we have tried to write the code, है ना, अपना जो भी कोड है वो हम लिख रहे थे, right? सेम प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू while learning or working with Selenium as well. Selenium के साथ कुछ अलग नहीं होगा, बस यही होगा. We have to open Eclipse, then create project, create package, create class, and we have to write the code for your Selenium or to develop automation script. Okay, now this was the process. Now in previous section we have seen the Selenium setup. Selenium setup. Selenium setup, right? So what is the first process? Download and install JDK, right? सभी ने किया ये स्टेप? Yes or no, guys? Yes, sir. Yes, Very sir. good. What was the next step? Eclipse, right? You have to download and install और Eclipse. क्या करना था? Install किया सभी ने Eclipse? Do you want to install Eclipse? Yes. No, guys. We don't need to install Eclipse, right? सभी ने install किया है Eclipse को? We have to just नहीं. download it and keep in your local. Eclipse को install करने की जरूरत नहीं होती है, okay? Then third step जो हमने देखी थी important. What was that? To download the jar Jar files, files. okay? And we have to add to the respective project also, है ना? वो मैंने दिखाया था आपको कैसे ऐड करना है. Then next is what? The respective driver files. If you are using Chrome, we have to download the respective driver files, है ना? ये हमने देखा था, okay? Now you have downloaded the jar files as well, right? Selenium jar files. As of now हमने बस कौन सी डाउनलोड की है फाइल्स? Selenium jar files. Okay. Now this was your Eclipse, okay? This was your Eclipse. Now as soon as you download the jar files, you have to create new project. Do not go with the existing project. ये मैंने पहले ही कहा था, okay? So एक बार मैं स्टेप दिखाता हूँ, but I will not work in that project, okay? We have to click on the files, okay? Here new we can create the project, okay? Before that I want to tell you one thing, okay? Now while creating Java project, okay, Java project, you can get option as module info, okay? Module info checkbox एक ऑप्शन मिल सकता है. Why I'm saying you can get it depend on your Eclipse version as well as JDK version, okay? You can get this option. देखिए अब हमने इसके पहले जावा के साथ भी काम किया है to write the basic Java code, okay? That time we have not worried about this concept, but when working with Selenium we have to take care कि अगर आपको क्रिएट करते समय जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय मॉड्यूल इन्फो चेकबॉक्स अगर दिखता है, इफ सो इट इज अनचेक्ड, इट शुड बी अनचेक्ड. बाय डिफॉल्ट वो चेक होगा, बट उसको आपको क्या करना है? आपको करना है अनचेक, ओके? इफ यू फाइंड देन ओनली, अगर नहीं आपके इक्लिप्स वर्जन के साथ और जेडीके वर्जन के साथ, सो डोंट गेट वरीड. बट अगर आपको देखना है कि आपको ये ऑप्शन मिलता है क्रिएटिंग जावा पैकेज करते समय कि मॉड्यूल इन्फो नाम का कुछ चेक बॉक्स दिखता है, तो उसको अनचेक करना है. बाय डिफॉल्ट वो चेक होगा, ओके? आई होप कि बॉक्स को अनचेक और चेक करने का मीनिंग आपको पता है, ओके? एंड ऑल्सो इट कैन आस्क यू लाइक मॉड्यूल इन्फो, इसको आपको क्या करना है वो पूछेगा, क्रिएट और डोंट क्रिएट, ये ऑप्शन पूछेगा आपको, ओके? सो यू हैव टू क्लिक ऑन डोंट क्रिएट.
simple things. Okay, if it is asking you while creating the Java project that time only. ये दोनों चीजें क्लियर है? What I'm trying to say, इसमें कोई डाउट है? No, sir. ये हर आपको आपके वजन में आएगा कि नहीं ये नहीं बता सकता हूँ मैं, बट इफ यू आर गेटिंग इट देन डू दिस कि मॉड्यूल इन्फो चेक बॉक्स जो है उसको आपको अनचेक करना है. अनचेक मतलब अनटिक करना है. बाय डिफॉल्ट होगा टिक. और ऑप्शन और एक पूछेगा कि मॉड्यूल इन्फो आपको क्रिएट करना है कि नहीं करना है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दी डोंट क्रिएट. सिंपली यू हैव टू क्लिक. ओके okay, so I will show you just for you. Okay, this is your package explorer. Just go new file, then option with new. Here it will ask you to create project. Again you can find this. You can just expand the Java, and here you are getting one title as a Java project. Click on the Java project. Next, we have to give the name for your Java project. Okay, any Java project you can say. Okay, for example I am giving it a title. Now just scroll down. Here you can see the module. You can see the module, and it is asking me create module info java.java file. Can you see this option? Can you see this option or not? Yes, sir. So first time maybe it may be checked for you like this. So you should go and uncheck it like this. Okay, create module info dot java file. ये ऑप्शन आपके पास बाय डिफॉल्ट होगा तो वो होगा टिक. उसको अनटिक करना है आपको. दैट इज द वन थिंग. और अगर ये ऑप्शन ही नहीं मॉड्यूल नाम का, सो डोंट गेट वरीड. जस्ट गिव योर नेम एंड क्लिक ऑन द फिनिश. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ओके, इट्स वेरी सिंपल. देखिए हमने जब पहले जावा के साथ किया था तब हमने ये चेक नहीं किया था, बट पर्टिकुलरली अगर आप सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ काम कर रहे हो तो यू शुड बी डूइंग दिस एक्टिविटी व्हाइल क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट ओनली. बाद में मत करिए. ओके, यू शुड गो विथ स्टेप बाय स्टेप. मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तभी मैं स्टेप कर रहा हूँ. ओके, नॉट आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट. आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही नहीं कर सकते हो. आई थिंक इट्स क्लियर राइट. सो आई एम नॉट क्रिएटिंग हियर. जस्ट यहाँ पे आपको अनचेक करके फिनिश क्लिक करना है. यू विल गेट द न्यू प्रोजेक्ट. ओके, आई विल शो यू. नो इशू. सो फिनिश मान लीजिए. Okay, so see here the Java project with the name as title is created. Okay, how to add jar files. How to add jar files. I will quickly show you. Just right click on the created project. Right click on the created project. You will find one option as a build path. Build path. Just hover over your mouse on this. Again you will find multiple options. उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ. ओके, एक न्यू विंडो ओपन होगी. हियर यू आर ऑलरेडी ऑन ऑप्शन लाइब्रेरीज. देखो थर्ड टाइप का ऑप्शन है लाइब्रेरीज, इस पे है. देन सी ये जो ऑप्शंस है राइट साइड में ऐड जार्स, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ये सभी क्या है ग्रेड आउट है. मतलब इसको आप क्लिक नहीं कर सकते हो अभी. यू शुड सिलेक्ट ऑप्शन क्लास पाथ. स्टिल अगेन कंडीशन यहाँ पे ये है कि क्लास पाथ का ऑप्शन अगर आपके इक्लिप्स में दिखाई दे रहा है तो उसको सिलेक्ट कीजिए. अदरवाइज नो वरी, यू कैन गो विद द डिफॉल्ट मॉड्यूल पाथ. ओके, जस्ट क्लिक ऑन द क्लास पाथ. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सभी ऑप्शन enabled हो जाएंगे. You can see it's enabled. Then we have to select second option, add external jars. Click on this. It will ask you the path of your jar files. आपने किसी फाइल्स फोल्डर में रखे होंगे, जस्ट गो टू दैट फोल्डर और जितने भी जार फाइल्स है उसको आपको ऐड करना है प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये सब सिलेक्ट हो रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ऐड द फोल्डर्स, तो इसको आपको अनटिक करना है. देन क्लिक ऑन ओके, ओपन. ये फाइल ऐड हो गए. अगेन क्लिक ऑन क्लास पर, क्लिक ऑन ऐड एक्सटर्नल जार्स. अगर ये फोल्डर में भी कुछ है जार फाइल तो आपको डबल क्लिक करना है
ओके इसमें भी जार फाइल है. Make sure there is a no again folder. So control all, open, all jar files are added. Just click on apply and close. So in this way only you can go ahead and write your code. इसमें किसी को कोई डाउट है? Yes. Okay. Now. Okay. Now we are trying to develop an code only, right? हम कोई क्लास, अब देखिए हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. Again you will create a package, you will create a class and you will try to write the code, right? So we will do that step. Okay, so okay, so consider this the project you have created. By default there are only two folders, JRE system libraries and SRC. ये रेफरेंस लाइब्रेरी कौन से फोल्डर होंगे? इसमें अपने जार फाइल्स पुल की है. ऑल दीज आर द जार फाइल्स. okay okay now we have created a package, or we want to create a package that we can create. For example, just right click on this, create a package. So this is your package. Okay, batch 30 for example. Click on finish. Okay, so we have created a package. Then next we have to create a class. We have to create a class. Now while doing the automation, अब अभी तक हमने जितने भी क्लासेस क्रिएट किए थे डिपेंड्स अपॉन आवर कंसेप्ट, राइट? लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग और वॉट एवर इट मे बी. बट हम जब ऑटोमेशन के साथ काम करेंगे, सो वी हैव टू कीप इन माइंड ऑफ दिस टेम्पलेट. सभी को ये टेम्पलेट पता है? व्हाट इज दिस? ये टेम्पलेट क्या है? Test Test template. टेस्ट केस टेम्पलेट. इसमें आपने टेस्ट केस लिखे होंगे, राइट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटोमेशन के लिए आप जब टेस्ट केस लिखोगे और ऑटोमेशन के आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को डेवलप करोगे, तब आपको जो क्लास को नाम देना है उसके लिए एक सिस्टम फॉलो करनी है. यू हैव टू गिव द टेस्ट केस नेम एज दिस टेस्ट केस आईडी TC001 underscore. We have to give the short description of your test case title, not complete verify user navigating to home page, just home page navigation, that's it, like that. okay so देखिए और एक बार बताता हूँ मैं नाम कैसे देना है. जनरली तो ये फॉलो होता है कि we have to give your project name underscore test case ID and then test case description. okay, अगर इसको मैं एग्जाम्पल मानूं तो एग्जाम्पल what I can get it as an example as, मान लीजिए our project is what HRMS underscore TC001. okay, TC001 and anything we can say like home page, if you want to check home page, like that. In this way we are giving the name to our class. okay, simple. आप randomly दे भी सकते हो, but to make a uniformity we are following this way. okay, again आप जो भी project में join होंगे in future, they can again follow the next or any process. It depends upon project to project. okay, so come back to the Eclipse. Here in the newly created package batch 30, I am just creating the new Java class. okay, it should start with capital. so मान लीजिए login functionality मुझे चेक करना है. okay, login underscore okay, just click on finish. okay, so you are in a class. यहाँ तक हमने कोई डिफरेंट किया है क्या? The same which we have done
while creating the Java programs as well. इससे कोई डिफरेंट किया है कुछ हमने? यहाँ तक कि कोई सी डाउट है? एनी डाउट टिल दिस? यस, कोई डाउट है? No, No, sir. sir. Okay, No. good. Okay. Now we are writing the Selenium code. Okay. Now, as usual, this is your class login logout. What the first step we want to create while after creating the class? Main method, right? What is syntax for main method? Public static void main. String out. Saying we have created the main method. Why we are creating the main method? Because it is the starting point of the Java To program. start the execution, right? To start the execution. Okay. Now again come back to this concept. To work with WebDriver, we are trying to work with jar files. jar file से क्या होगा? We are going to get the respective packages, class, methods. अब इसमें से फर्स्ट टाइम तो हमने कर लिया है, jar file को हमने ऐड कर दिया कि नहीं? Have we added the project jar files or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. But इस प्रोजेक्ट के लिए हमने किया है, how you will get it? You can get the third folder, reference library, है ना? Okay. Again, adding the jar files is a one time activity. आपको बस एक ही बार करना है जब आपने प्रोजेक्ट किया था, हर समय नहीं करना है आपको. If you are creating the new project, definitely you should do it. But already एक बार किया है आपने और आप मान लीजिए इस पे आप कल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो no need to add again the jar files. Okay? It's a one time activity. Now, अगर हमने jar file add कर दिया है, that means this step is done. Now the package को क्या करना पड़ेगा हमको? We have to how to call the package, guys? Import. We have to import it. Okay, now just listen carefully and see it carefully. Okay, the keyword we have to use as a import. अब देखिए मैं import क्या कर रहा हूँ, उसका मीनिंग वन बाय वन देखते हैं हम. Import org dot openqa dot selenium dot okay. Now I want to import a package with name org dot openqa dot selenium dot webdriver. Why we are importing this package? So we get access this in that To access the web driver and its method, है ना? हमको क्या करना है? वेब ड्राइवर. देखिए मैंने क्या किया, लास्ट ऑप्शन देखना है आपको, वेब ड्राइवर. वी हैव इंपोर्टेड द वेब ड्राइवर. अब मैं जितने भी मेथड्स होंगे उसको मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ. व्हाई? बिकॉज आई हैव इंपोर्टेड दिस पैकेज. Okay. Now next देखिए, import again org dot openqa dot selenium dot. Just listen carefully. Now we are working with different browsers, right? Different browsers. So here we have to call that respective driver. So for example, Chrome driver. Here also you are getting option, right? Now why have imported this package? क्यों किए होंगे हमने पैकेज इंपोर्ट? To access the Chrome driver, है ना?
अब मैं अगर मान लीजिए क्रोम ब्राउजर के साथ काम करूंगा तो उसके ड्राइवर को एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ पैकेजेस कॉल करने होंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू इंपोर्ट द पैकेज रिस्पेक्ट टू द क्रोम ड्राइवर. If you are working with Firefox driver, you have to use the Gecko driver, right? You know, for each and every browser there are different drivers. मान लीजिए मैं Chrome के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं उसी पैकेज को कॉल करूंगा. Okay. Next, import. Now again see, I am trying to call org.openqa.selenium. Now see, we are getting the different options also. Okay, अभी ये क्या है, suggestions है. You can go for this, or we are trying to call the particular one, selenium dot by. Sorry. Now why we are calling these packages? To find the element, or okay, उसको कहते हैं हम to access the object identification methods, है ना. There are different methods to identify the object from given page. जितने भी मेथड्स है उनको एक्सेस करने के लिए मैंने ये पैकेज को इंपोर्ट किया है. इसमें किसी को कोई डाउट है? No, right? Okay. Now we have created the class, we have imported the required packages. अभी पैकेजेस ही याद रखना, यही सेलेनियम में आपको एक टास्क है बस. अदरवाइज नियर अबाउट ऑलरेडी इट्स प्री डिफाइंड, ऑलरेडी क्रिएटेड. आपको बस उसको यूज करना आना चाहिए. ओके, सो वी हैव ट्राइड टू इंपोर्ट दिस 3 पैकेजेस. ओके, नाउ we are in main method. In main method exactly हम automation script develop कर रहे हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? We are trying to perform the steps from manual test cases, right? We are performing the steps from the manual test case. What this symbol is? 2 forward slashes. इसका क्या मीनिंग होता है? Comment. Comments means this code will be not get executed. जेडी को ये पता चलेगा कि ये आपने जो भी लिखा है ये कोड का पार्ट नहीं है, एंड इट विल नॉट ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. अदरवाइज अगर आप ये सिंबल नहीं दोगे और लिखोगे तो इट विल थ्रो एन एरर. ओके, इट विल गिव यू एन एरर. सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कमेंट इट. और मैं कमेंट करके आपको बस उसका जो भी है इंफॉर्मेशन वो दे रहा हूँ, है ना. While writing the actual code, आपको एक कमेंट करके लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, कीप इन माइंड. आपको किसी को पढ़ाना नहीं ना जब आप कोड लिख रहे हो. सो यू कैन डायरेक्टली राइट द कोड. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम एडिंग दिस एंड कमेंटिंग दिस, बट इन रियल प्रैक्टिस आपको ये करने की जरूरत नहीं है. ओके, ओके, फॉर फर्स्ट टाइम इफ यू वांट जस्ट टू रिवाइज यू कैन राइट इट, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको ये कभी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ओके, डोंट राइट दिस. आपको ये ऐसा लिखना नहीं है, अदरवाइज यू विल मेक एन हैबिट टू राइट दिस आफ्टर ईच एंड एवरी लाइन कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, डोंट डू दिस. ये बस आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ. ओके, ओके. नाउ कम बैक टू द मैनुअल टेस्ट केस. ओके, कम बैक टू द मैनुअल टेस्ट केस एंड कम बैक टू अवर एप्लीकेशन. कौन से एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे थे? OpenCart. Okay, that was for the manual testing. For automation, आपको पता है मैंने एक दिया था आपको एक URL. Yes. कब दिया था मैंने आपको? ऑटोमेशन हमने स्टार्ट किया नहीं ना. ये दिया था मैंने आपको, yes or no? Yes sir. किस लिए दिया था? वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए. यस, टू फाइंड आउट दी वेब एलिमेंट. जितने भी ये है सभी एलिमेंट है ना. व्हेन वी आर वर्किंग विद लोकेटर्स दैट टाइम आई हैव गिवन यू दिस, राइट? ओके, सो मैनुअल टेस्ट केस
चलिए अब ये है आपका सिंपल एप्लीकेशन मान लीजिए. ओके, नाउ एज अ टेस्टर यू वांट टू राइट योर टेस्ट केस. अब ये है इंट्रो क्वेश्चंस. ओके, सेम पैरेलली वी आर डीलिंग विथ मल्टीपल थिंग्स नाउ. चलिए मुझे बोलिए कि आपको इसमें 3 टेस्ट केस लिखने हैं. ओके, और आपको बस ये मिला है एप्लीकेशन. सो व्हाट इज योर फर्स्ट टेस्ट केस? Check the URL, sir. Hit the URL. okay. Is it your test case you are saying? Yes, sir. Okay. What is the title of this test case? Give me the title. Orange HRM, sir. सर्च करना है. Okay. Orange Anybody's HRM. okay. Anybody's from our previous session can tell me यहाँ पे कौन सी टेस्ट केस लिखनी होगी आपको, या आप लिखना चाहते हो? Verify username, we get to home page. Verify you get username on home page. Okay. What is the second test case? Verify a valid user should able to log in the home. Okay. 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 This is your test case. मान लीजिए validate the verify the validated or authorized user is going to log in the application. मान लीजिए ये test case है आपकी. Okay, just for us just for time being. Okay, then what is your step number 1 for this test case? Open the given URL. Okay, good. Again, Enter the username and password. Both columns should be clickable. okay, चलो यहीं से आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होने चाहिए. ओके, बिकॉज आपने प्रैक्टिस छोड़ दी होगी या फिर यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट. ओके ओके, आप कह रहे हो टेस्ट केस 1 सिंपल मान लीजिए वी आर चेकिंग दी लॉग इन फंक्शनैलिटी. ओके, फंक्शनैलिटी. ओके, स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहे हो आप? चलिए मुझे बोलिए स्टेप नंबर 1. Open the given URL. open the given URL. Okay, next step बोलिए. Enter the username and password. Okay, enter username. जनरली माय डियर फ्रेंड्स आपको इंडिविजुअल स्टेप लिखने पड़ेंगे इसके लिए. ओके, एंटर पासवर्ड. ओके, देन Click on login button. login button. Okay, then any step or what we need to check? Valid user should be fully login to the home page. ये तो आपका इसमें आएगा प्री कंडीशंस में ना. क्लिक ऑन लॉगिन बटन पे क्या है? देन व्हाट यू आर चेकिंग एज अ फंक्शनैलिटी. आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो, स्टेप क्या कर रहे हो? वेरीफाई करना चाहते हो यहीं पे. Yes. Okay, verify the user is logged in. Okay, okay, so is it enough to check the login functionality? Okay, yes or no? Yes, sir. Okay, okay, चलो मान लीजिए ये है अपनी टेस्ट केस नंबर 1. Okay, we are working with which tool? We are working with which tool? Selenium. Okay, what is the difference between automation testing and manual testing? Manual testing is done by a
specific user or a person. Mm-hmm. In automation, a person or a tester should write a script to run the Mm-hmm. test. Very good. We are using a third party tool or any tool. Okay. अब टूल इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको उसको देना पड़ेगा हमको इंस्ट्रक्शन, राइट? अगर टूल ऑटोमेशन करता तो हम बस टूल इंस्टॉल करके छोड़ देते ना, बट वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू दैट टूल. ओके, अभी ये आपको इंस्ट्रक्शन देना है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन टूल को. सो व्हाट डू यू थिंक, हमको क्या बोलना पड़ेगा टूल को? जैसे सेलेनियम स्क्रिप्ट रन करना होगा. कैन वी से टूल प्लीज ओपन द गिवन यूआरएल? कैन वी से इट? No. Most we have to write the script for that. ओके, चलो मान लीजिए मुझे अभी स्क्रिप्ट राइट करना है, तो मुझे स्क्रिप्ट के लाइन 1 नंबर में क्या लिखना पड़ेगा? मतलब एट जनरली आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्टली द कोड, बट आपका उसके मोटो क्या है? आपको क्या चाहिए? फर्स्ट कोड से क्या चाहिए आपको? फर्स्ट लाइन जो कोड होगा आपका, वहां से क्या चाहिए होगा? First we have to set the driver path of a ओके, particular. ड्राइवर पाथ, Browser. गुड. ओके Then sir we have to create the object of the web driver. ओके ओके. नाउ सी यू मिक्स दिस स्टेप. एक्चुअली आपका फर्स्ट स्टेप होता है लॉन्च द ब्राउजर. ओके, आप ओपन कहाँ पे करने वाले थे? ये फोल्डर स्ट्रक्चर में, गिवन यूआरएल में. तो मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ यूआरएल, पता है? यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ यूआरएल. इज इट गोइंग टू एक्सेप्ट? No sir. यहाँ पे भी मैं सर्च कर सकता हूँ यूआरएल. इज इट गोइंग टू एक्सेप्ट? ये सब एक्टिविटी में कहाँ कर रहा हूँ? इन फोल्डर स्ट्रक्चर. वेयर आई नीड टू डू इट इन द ब्राउजर इटसेल्फ. अपने ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए, उसके बाद ही आप ये करोगे ना, ओपन यूआरएल वगैरह. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज यूर लॉन्च द ब्राउजर. अब लॉन्च करना है आपको ब्राउजर को. ओके, यू वांट टू लॉन्च द ब्राउजर. ओके, नाउ वी आर यूजिंग विच टूल? Selenium WebDriver, राइट? Selenium WebDriver. अब इसको मुझे कहना है कि WebDriver you just go and open the browser. ब्राउजर कहाँ पे अवेलेबल है? आपके लोकल सिस्टम में, है ना? आपने इंस्टॉल किया होगा आई थिंक एनी ब्राउजर, राइट? ब्राउजर आई एम सेइंग. ओके, ब्राउजर. So Selenium WebDriver go and communicate with the browser which is installed in the local system, but it cannot do. Selenium will not directly go and communicate with this browser which is present in your local. Okay, here we need one mediator, and that mediator is nothing but your driver exe. ड्राइवर फाइल्स. देखिए क्या होगा, आपके सिस्टम में 3 ब्राउजर है मान लीजिए. आपको सेलिनियम के कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से ब्राउजर के लिए बात कर रहे हो? एंड अगेन वन मोर थिंग, व्हेन वी हैव सीन द आर्किटेक्चर ऑफ द सेलिनियम, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि सेलिनियम वेब ड्राइवर डायरेक्टली आपके ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है. इज इट गोइंग टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ब्राउजर? यस और नो? नो, इट विल नॉट कम्युनिकेट. कोई भी एप्लीकेशन अपनी फंक्शनलिटी किसी और टूल को क्यों दिखाएगा? ये एक टूल है, एप्लीकेशन है ब्राउजर, और ये एक टूल है. इस टूल को अगर ये पूरी फंक्शनलिटी दिखाएगा, देन इसमें कुछ भी हाइड नहीं रहेगा ना. सो इट विल नॉट डायरेक्टली एक्सपोज ऑल इट्स फंक्शनलिटी टू द थर्ड पार्टी टूल. सो मीनवाइल उसका मीटर बनेगा आपका ड्राइवर exe फाइल. दैट मीन्स क्रोम ड्राइवर हमने जो डाउनलोड की है, मान लीजिए मैं क्रोम के साथ काम कर रहा हूँ ब्राउजर के साथ, तो मुझे क्रोम ड्राइवर फाइल का हेल्प लेना पड़ेगा टू वर्क विद द वेब ड्राइवर. इसमें कोई किसी को डाउट है? No. Okay, चलिए again come back to the code. Now I am trying to write these steps. Okay, I'm in main method. So here all these things are standard. Okay, don't get worried. System dot set properties.
ओके, सेट प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग की एंड स्ट्रिंग वैल्यू, इस पे क्लिक करना है आपको। नाउ इट इज आस्किंग द टू वैल्यूज, अब यहाँ पे आपको दो पैरामीटर वो पूछ रहा है, राइट। इसमें पहला पैरामीटर आपको देना पड़ता है कि आप किस ड्राइवर के साथ काम कर रहे हो। सो इन डबल कोट वी हैव टू गिव वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, आप काम कर रहे हो समझ लीजिए क्रोम के साथ, एंड देन अगेन दी क्रोम ड्राइवर। ओके, आप किसके साथ काम कर रहे हो? वाइल वर्किंग विथ सेलेनियम वेब ड्राइवर प्लीज गो एंड check with the Chrome because we are working with the Chrome driver. Simple. अभी आपने इंस्ट्रक्शन देना है वेब ड्राइवर को या सेलेनियम को कि आपके लोकल में एक ड्राइवर मैं यूज करने वाला हूँ, वो है आपका क्रोम ड्राइवर जो आपने कोई लोकल में रखा होगा, राइट। सो फर्स्ट आपको जो आर्ग्यूमेंट है उसमें क्या दिया आपने? वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट क्रोम ड्राइवर। ओके, नाउ और एक आर्ग्यूमेंट बाकी है, दैट आल्सो वी शुड गिव, और ये पूछेगा आपको कि ओके अब आपका ये वेब ड्राइवर लोकल सिस्टम में कहाँ पे रखा है? लोकल सिस्टम में कहाँ पे रखा है? तो आपने अगर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया होगा तो फॉर एग्जांपल देखिए आपने वेब ड्राइवर नाम का एक फोल्डर बनाया, राइट। जस्ट क्लिक ऑन दिस, फिर आपके पास और एक फोल्डर बना होगा आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग क्रोम ड्राइवर नाम, डबल क्लिक ऑन दिस, ये है वो ड्राइवर है ना। देखिए यहाँ पे क्रोम ड्राइवर एप्लीकेशन लिखा है, राइट। सो आपको ये जो टास्क, ये जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए एक ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, जस्ट कॉपी दिस इज द पाथ ऑफ योर दिस फाइल, जस्ट कम हियर एंड पेस्ट हियर, कम हियर एंड पेस्ट। ओके, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ओके। देन अगेन टू फॉरवर्ड स्लैशेस, और आपको फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम क्या है वहां पे देखिए, क्रोम ड्राइवर ही आपका, क्रोम ड्राइवर, ओके। एंड एक्सटेंशन आल्सो, इट्स अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उसका एक्सटेंशन दिया है, ओके। एंड कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, ये क्या है? डायरेक्टली आपके कोड से, मान लीजिए इससे क्या कर रहा हूं मैं, मेरे वेब ड्राइवर को बता रहा हूं कि मुझे काम करना है क्रोम ड्राइवर के साथ, और उसका लोकेशन कहां पर है? तो मेरे लोकल सिस्टम में, दिस इज इन माय लोकल सिस्टम, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, we have to create the object of what? Web driver is equal to driver is equal to new I'm getting an error. सर वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। Yes. What is web driver? Interface. If you'll hover your mouse, you will see it is an interface. Can we create an object for interface? No. Okay. Then We have to create object of Chrome driver. okay. ऑब्जेक्ट मैं वेब ड्राइवर का ही बना रहा हूँ, बट what is the difference between the walk-in and referral walk-in? Do you know the We are concept? हमने taking the बताया reference reference of class, और वो class क्या है? Chrome driver. That class is a Chrome driver. Okay, that class is a Chrome driver. देखिए वेब ड्राइवर इंटरफेस ही है, but like I cannot create the object of interface directly. I am taking the help of class. Definitely ये class क्या होगा इसमें, इसने इस वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट किया होगा ना, इस इंटरफेस को, then I can use it directly.
ओके नाउ यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? No. एनी डाउट माय डियर यहाँ तक? नो सर। ओके अभी तक हमने क्या किया था? जावा कोड ही रन किया था, राइट? नाउ फर्स्ट टाइम सेलेनियम का आज का हमारा पहला कोड हम रन कर रहे हैं. इफ यू वांट वी कैन ट्राई. ओके पता नहीं एरर आएगा नहीं आएगा, वी विल ट्राई. टुडे इज आल्सो गुड डे टू स्टार्ट, राइट? ओके यहाँ तक अगर आप किसी को डाउट नहीं है तो मैं इस पे एक बार रन करता हूँ. अगेन सेम यूजुअल स्टेप, राइट? जैसे हम जावा कोड रन करते हैं वैसे ही रन एज वन जावा एप्लीकेशन. ओके जस्ट क्लिक ऑन एंटर. Are we getting any output? नो। No. I launched this browser. Yes, sir. यस सर। मैन्युअली किया मैंने ये. नो। No, sir. Automated by script. You can also see Chrome is being controlled by an automated test software. That is nothing but our Selenium. देखिए मैंने लॉन्च ब्राउजर स्टेप नंबर 1 था. स्टेप नंबर 1 ऑटोमेटिक लॉन्च हुआ है. आई हैव जस्ट रन द स्क्रिप्ट और वो ऑटोमेटिक लॉन्च हुआ है. ओके सो दैट विल गिव यू जस्ट स्टार्टिंग आइडिया कि ऑटोमेशन में होता क्या है. आप स्क्रिप्ट को देते हो इंस्ट्रक्शन और लाइक टूल को देते हो इंस्ट्रक्शन थ्रू द स्क्रिप्ट एंड इट विल ट्राई टू ऑटोमेट. वो क्या करेगा? आपके ब्राउजर ओपन करेगा और फर्दर एक्शन करेगा. ओके ये ब्राउजर मैंने ओपन किया. एनीथिंग इन दिस ब्राउजर? कुछ दिख रहा है आपको इस ब्राउजर? नो। ओके कुछ भी नहीं यहाँ पे है ना, बिकॉज सेलिम को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पता ही नहीं ना. ब्राउजर तो ओपन कर दिया मैंने, लॉन्च ब्राउजर कर दिया, उसके आगे क्या करना है मुझे? व्हाट आई शुड गो एंड डू? Sir, it's Okay. particular URL. यस 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 वेरी गुड. देखिए मैं इसको एज ऑफ नाउ क्लोज कर देता हूँ. ये मैन्युअली कर रहा हूँ मैं. ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लोज इट. अब अगेन बैक टू द कोड. लाइन नंबर 18 तक उसने क्या सीखा, मतलब क्या किया एग्जैक्टली? तो उसने लॉन्च किया आपका ब्राउजर. ब्राउजर लॉन्च करते ही आप क्या बोल रहे थे? लॉन्च ब्राउजर. उसके बाद आपको देना है यूआरएल हिट करना है कोई. अब यूआरएल भी उसको पता नहीं है. तो सेलेनियम विल नॉट नो अबाउट द यूआरएल. आपको यूआरएल देना पड़ेगा. तो मान लीजिए ये है यूआरएल आपका. जस्ट कॉपी दिस यूआरएल प्रॉपरली. नाउ हमने ऑब्जेक्ट बनाया है. आई विल टेक द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्राइवर डॉट. नाउ वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर मेथड navigate, है ना? यूजर शुड नेविगेट टू पर्टिकुलर यूआरएल. तो नेविगेट नाम की एक मेथड है ऑलरेडी, उस पर क्लिक किया आपने. नेविगेट किस यूआरएल के लिए जाना है आपको? किस यूआरएल के लिए जाना है? सो टू करोगे तो वो स्ट्रिंग यूआरएल पूछेगा. देखिए आर्ग्यूमेंट क्या देना है आपको इसमें? स्ट्रिंग देना है और वो क्या होना चाहिए? यूआरएल. सो आपने इस पे क्लिक किया. स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट में मैं देता हूँ कंट्रोल वी द यूआरएल दिस. ओके देखिए नेक्स्ट लाइन नंबर 19 में मैंने क्या दिया उसको? यूजर शुड गो एंड नेविगेट टू दिस पर्टिकुलर यूआरएल. देखिए अब मेरे पास एक ही ब्राउजर यहाँ पे ओपन है. ओके बट if I will run this, it will open a new session and it will hit that URL also. देखिए अब it may take some time at the start. Okay so don't get worried. Now it will open a browser and it will hit that URL. Got it? Yes or no guys? Yes. यस सर। ओके सो आपने क्या किया? ब्राउजर को लॉन्च किया, यूआरएल एंटर किया और यू आर इन द ब्राउजर इटसेल्फ. अभी मैंने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया. ओके नाउ सिंपली अभी मैं लॉग इन नहीं करना चाहता हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लोज दिस ऑल्सो. जैसे मैं मैन्युअली अभी क्लोज कर रहा था, अब मुझे वो ऑटोमेशन से ही क्लोज करना है वो सेशन. सो ड्राइवर डॉट
you are getting first option only, close driver dot close. Okay, end the sentence. Now अब मैं अगर रन करूंगा तो क्या होना चाहिए? It should take the path of your particular local system for finding that that Chrome driver. उसने वो ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए, उसमें ये यूआरएल को पुट करना चाहिए और सेशन क्लोज भी करना चाहिए. ओके, वी विल ट्राई टू डू दिस. It happened or not, guys? हुआ है कि नहीं है? Whereas Or I'm getting errors only. Okay, I will run again one more time. Let's observe carefully, okay? It should launch, hit the URL and close the session. Okay, now listen carefully. Selenium is too fast, okay? Just वो एक starting phase के लिए कुछ time लेगा, but after that it will react very quickly. Okay, you cannot get exactly हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay? Okay. So for that reason हमको Selenium को ये भी बोलना पड़ेगा कि Selenium please wait for some time. Let us see the execution is happening. तो उसके लिए उसको instruction देना ही पड़ेगा. उसको हम मैन्युअली स्टॉप नहीं बोल सकते. So for that we are using thread. We are using one command, okay? Thread dot slip, okay? Thread dot slip, and inside the bracket it is asking milliseconds, okay? 5000 milliseconds. Okay, मैं इसको बोल रहा हूँ कि Selenium WebDriver please stop the execution for 5000 millisecond after line number 19. मतलब जब आप URL को हिट कर रहे हो उसके बाद क्लोज करने के पहले आपको 5000 मिलीसेकंड रुकना है. We are getting an error. We'll see that error. Unhandled exception type interrupted exception. So यहाँ पे वो मुझे कुछ error दे रहा है. So how we will handle the exception? Try catch block. Try catch block. Very good. Again I told you one more method, throws exception, जो मैं कहा था कि आपको Selenium जब हम पढ़ेंगे तब दिखाते हैं. तो ये जो मेथड है आपकी public static void main, उसके बाद मुझे कीवर्ड लिखना है throws, कीवर्ड है and exception. तो मैं मान रहा हूँ कि इस मेथड में मुझे कुछ शब्द मिलने देखो, then it will went away, okay? It will go away. कि अब ये मुझे नहीं दिख रहा है एरर यहाँ पे, okay? Okay, now we will try to run and 5000 millisecond means 5 seconds. It will stop for 5 seconds before closing the session. Okay, we will try this. Now it will launch the session, hit the URL, wait for 5 seconds, then it will close the session. Hit URL, after that you can count 5 seconds also. 1, 2, 3, 4, 5 and it will be closing. Got it? अब ये कंसोल में जो आ रहा है, you are not worried about this. You are not worried about this. For example, अगर आपको confirmation चाहिए, so आप यहाँ पे you can write the code as, आप यहाँ पे instruction लिखिए. What you can write here as a
you can write here as application opened and navigated to URL. You are just putting a message, okay? And the same after this you want to put a message as just to check कि execution हो रहा है कि नहीं, okay? The session is closed. Okay? Now I will run और मुझे कंसोल में अब ये क्या दिखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दिए वो दिखने चाहिए और पूरा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए. So it will launch it, go to the URL, wait for 5 seconds and close it. Okay, it is just hitting the URL, wait for 5000 milliseconds or 5 seconds, close it, and see in output we are getting app opened and navigated to URL and the session is closed. This is the last sentence, line number 23. Is it running right? तो इसमें किसी को कोई डाउट है to this session? सर थ्रोज एक्सेप्शन हर बार लिखना पड़ेगा क्या? सी मान लीजिए अगर आप थ्रेड डॉट स्लीप यूज करना चाहते हो तो वो एक्सेप्शन देगा वहाँ पे अनहैंडल्ड. फॉर दैट यू हैव टू यूज इट. अगर मान लीजिए अपने कोड में ये लिखा ही नहीं है, इट इज जस्ट गोइंग एज इट्स ओन स्पीड, नो नीड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन. आपके पास एक्सेप्शन है ही नहीं ना. बट वो क्यों आ रहा है, मतलब वो लाइन एक्सेप्शन बिकॉज उसको पता नहीं ना थ्रेड कितनी देर के लिए स्लिप करना है, और ये इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट सेलेनियम के लिए नहीं पता होता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा. इट इज गिविंग द एरर आल्सो इंटरप्टेड एक्सेप्शन, कि ये आपके फ्लो को इंटरप्ट कर रहा है ना. आपका फ्लो या गो अहेड. इंस्ट्रक्शन का एक टाइप है क्या थ्रेड डॉट? हाँ, इट्स अ इंस्ट्रक्शन कि आपके वेब ड्राइवर को आप बोल रहे हो कि इस एग्जीक्यूशन में लाइन नंबर 20 के बाद आपको इस पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकना है. स्लिप मींस आइडल, बीइंग एज एन आइडल, कुछ नहीं करना है. नो एक्टिविटी लाइक क्लिक, मैक्सिमाइज, क्लोज, कुछ नहीं करना है. सो इट इज व्हाट इंटरप्टिंग योर फ्लो. कितने भी समय के रुकना ये इंस्ट्रक्शन है, बट आपका फ्लो तो रुक रहा है ना, उस एग्जीक्यूशन के लिए फ्लो तो रुक रहा है आपका, राइट? एग्जीक्यूशन नहीं होगा उस टाइम के लिए. सो दैट्स व्हाई वी आर शोइंग कि ये एग्जीक्यूशन का जो फ्लो रुक रहा है इसको आप एक्सेप्शन मान के हैंडल कर लीजिए. सो व्हेन वी विल यूज दिस इंस्ट्रक्शन इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन. मुझे पहले ही पता है ना यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, तो मैंने उसको जैसे ट्राई क्लैश करते थे वैसे हमने यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ वी हैव जस्ट यूज द सिंपलेस्ट मेथड थ्रोज एक्सेप्शन. तो इससे क्या होगा कि एक्सेप्शन को वो हैंडल कर लेगा. अब उसको नहीं बोलेगा कि इस इंटरप्टिंग दी फ्लो, और अनहैंडल एक्सेप्शन नहीं बोलेगा उसको. इट विल टेक द पार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूशन कोड ओनली. ओके, मतलब सेलेनियम हैंडल करेगा क्या एक्सेप्शन? यस. सर ये पूछना था कि जैसे अभी अपना जावास्क्रिप्ट जो है सेलेनियम स्क्रिप्ट में एक्सेप्शन थ्रो रहा, तो अगर आगे भी अगर वो एक्सेप्शन कुछ आएगा तो ये सिर्फ एक ही थ्रो और एक्सेप्शन से ये हैंडल हो जाएंगे सर? वी कैन गिव देयर टाइप एज वेल. अब जितने आपको एक्सेप्शन के टाइप आते रहेंगे तो उनको हम कॉमा से दे भी सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टाइप्स. दैट विल सी. अभी एज ऑफ नाउ जस्ट हमको एक सेंटेंस में एरर आया था. इफ वी आर गेटिंग द मल्टीपल एक्सेप्शन, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बताऊंगा. मैं जस्ट वन बाय वन. अब मैं इसको बताऊंगा तो इट्स नॉट यूजफुल. जैसे मैंने थ्रो एक्सेप्शन भी पहले नहीं बताया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? यू जस्ट यूज अ ट्राई एंड क्लैच. तो मैंने कहा था जब सेलेनियम होगा तब मैं आपको बताऊंगा. सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड द बेसिक अगेन. जस्ट समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे बेसिक हुआ एक्सेप्शन बाय यूजिंग थ्रोज. अगेन जब कॉम्प्लिकेशन आएंगे या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दैट आल्सो. ओके, डोंट गेट वरीड. और कोई डाउट है? Sir, it is a concept of multi-threading. या इस कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग मतलब जब जेडी के 1 by 1 लाइन जाता है इसको थ्रेड कहते हैं हम. सो इट इज गोइंग विथ मल्टीपल थ्रेड. दैट टाइम आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ वी आर गेटिंग द एक्सेप्शन इन मल्टीपल लाइंस और थ्रेड वी कैन से. वही कंसेप्ट में स्लोली इंट्रोड्यूस करूंगा. एक साथ करूंगा तो क्या होगा, मे बी अदर कैन नॉट फील कंफर्टेबल. दैट्स व्हाई. इसमें कोई डाउट है
we have started with our Selenium and we have tried with first code, ओके जो ऑटोमेशन के जरिए रन हो रहा है आपके स्पेसिफिक ब्राउजर पे, है ना. वी आर नॉट डूइंग इट एनी मैनुअल, और इस अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया. ओके, जस्ट कंसेप्ट समझ लिए. इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, इंपोर्ट क्यों करते हैं, देन व्हाट इज दिस मीनिंग कि ये आपके लोकल ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक मेडिएटर चाहता है जो आपने ऑलरेडी लोकल में रखा है कहीं तो. ओके, एंड देन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, एंड आपको पता है फिर ये स्पेसिफिक मेथड्स है. अब आप कहोगे कि नेविगेट मेथड मुझे क्रिएट करने की जरूरत है क्या, नहीं, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, वी जस्ट वांट टू यूज इट. अब नेविगेट मेथड में क्या एग्जीक्यूशन लिखा है वो मुझे नहीं देखना है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज दैट, एक्सेस दैट मेथड्स, राइट. सिमिलरली क्लोज, अगेन इट्स अ मेथड टू क्लोज योर एक्टिव सेशंस, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ. ओके ओके, यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट है कोई. नो सॉरी सर, ये पूछ रहे थे कि जैसे हम लोगों ने एक्लिप्स में सेटअप किया सारी चीज़ ना, तो सर इसकी एक और आईडी आती है ना, इंटेलिजेंट आईडिया, उसमें भी सेम सेटअप करके वो चीज़ें हो सकती है ना. I have not used. देखिए इन मार्केट वी कैन फाइंड मेनी एडिटर्स. वो एक्चुअली एक एडिटर ही है ना, टू राइट द कोड. तो उसके लिए आपको जस्ट उसका सेटअप कैसे करते हैं वो एक बार देखना होगा. आई हैव नॉट यूज इट पर्सनली, सो आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया, बट यस ईच एंड एवरी एडिटर कैन बी सेटअप विद दिस सेलेनियम, नो इशू. आपको बस देखना पड़ेगा. ओके, मेथड में भी डिफरेंट कुछ स्टेप्स अलग हो सकते हैं, बट यस वी कैन सेट अप विद द सेलेनियम एज वेल, और जो भी आपके पास एडिटर है. ओके, हॅलो सो या बोलिए, कोई डाउट था. सर ते इक्लिप्स सर मी इन्स्टॉल केलं होतं सर, बर बर, एक्सपोर्ट करायच्या ऐवजी, तर आता कसं करायचं. इक्लिप्स इन्स्टॉल केलं होतं. हो, बॅचला नवीन आहेस का तू. लोकलला एक्सट्रॅक्ट नाही सर, लोकलला Okay. एक्सट्रॅक्ट करायला बोलले होते ना सर तुम्ही सेलेनियमच्या सेटअपसाठी, हां हां, तर मी ते चुकून इन्स्टॉल केलं. का इक्लिप्स का. हो, तुला काय करावं लागेल, दोन्ही अनइन्स्टॉल कर सध्या, जेडीके पण आणि इक्लिप्स पण, कारण इक्लिप्स विथ जेडीके साठी ऑप्शन केलं होतं आपण. ओके, ओके सो ट्राय टू अनइन्स्टॉल बोथ. ओके, आणि त्याच्यानंतर परत जेडीके इन्स्टॉल करशील आणि इक्लिप्स फक्त डाउनलोड करून एक्स्ट्रॅक्ट करायचं तुला, बरोबर. ओके तेवढं कर फक्त, होऊन जाईल ते. ठीक आहे सर. बट फक्त या चुकीमुळे प्रोसेस करू नको, अदरवाइज यू विल गेट प्रॉब्लेम इन नेक्स्ट सेलेनियम एक्झिक्युशन. ओके ओके सर. ओके, एनी डाउट इन दिस. yes no. No. Yes, sir. Okay, now one important thing my dear friends, when I will give you this code, है ना, डेली हम नोट्स देता हूँ मैं आपको, है ना. ओके, सो आपको इस कोड में क्या चेंज करना है, कैन एनीवन टेल मी, और यू कैन डायरेक्टली रन ऑन योर सिस्टम. होना चाहिए ना ये सक्सेसफुली, कि नहीं होना चाहिए. path. You have to change the path of your driver in your local. आप ये करोगे तो आपका कोड कभी रन नहीं होना चाहिए. 100% sure. You have to change this path that is from your local. वो लोकल को कॉपी कीजिए, अगेन गिव टू फॉरवर्ड स्लैश उस फाइल का नाम क्रोम ड्राइवर डॉट इट्स एक्सटेंशन, एंड देन ओनली इट विल रन. ओके, आपको आपके लोकल में आपने कहाँ पे भी रखा होगा जहाँ पे क्रोम ड्राइवर नाम का एक फोल्डर बनाया होगा या ड्राइवर्स, तो वहाँ पे जाके वो पाथ कीजिए कॉपी. ओके, डोंट गो विद दिस पाथ. नाउ ये है यूजर डिपेंडेंट, ये मेरे सिस्टम में पाथ है, तो ये आपके सिस्टम पे नहीं वर्क करेगा. बाकी यूआरएल आपको मैंने पहले दिया है, यू कैन यूज दैट यूआरएल डायरेक्टली एंड जस्ट ट्राई टू ओपन दैट यूआरएल इन ब्राउजर एंड ऑल्सो ट्राई टू क्लोज इट. सिंपल, वन बाय वन एक्टिविटी देखेंगे हम. ओके, नाउ स्लोली द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इंक्रीज्ड. आज बस सिंपल हमने क्या किया है, ओपन क्लोज, दैट्स इट. बस मैंने ब्राउजर ओपन किया, यूआरएल हिट किया. नाउ नेक्स्ट आई विल ट्राई टू लॉग इन. अब लॉग इन के टाइम मैं इसको लोकेट करूंगा, यूजर नेम को, पासवर्ड को. आई कैन यूज एनी मेथड आउट ऑफ द 8 लोकेटर्स, राइट. तो अगेन ट्राई टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ वेब लोकेटर्स एज वेल.
वहाँ पे मुझे कुछ कंसेप्ट ज़्यादा समझाने के लिए टाइम नहीं होगा. ओके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको. सो ट्राई टू रिवाइज आउट दैट कंसेप्ट ऑफ द फाइंडिंग द एलिमेंट्स बाय डिफरेंट मेथड्स. ऐसा नहीं आपको हर समय एक मेथड से मिलेगा या एक ही यूज करना है. एज ए यूजर डिपेंडेंट आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड और एंड एम होना चाहिए कि उस एलिमेंट को आपको यूनिकली लोकेट करना है. आई एम सेइंग यूनिकली. देयर शुड बी नो एनी डाउट. सेलेनियम को डाउट नहीं पसंद है. अगर यूजर नेम जैसे उसको दो बॉक्स मिल रहे हैं तो वो कंफ्यूज रहता है कि एग्जैक्टली आप किस बॉक्स की बात कर रहे हो. सो यूनिक आपको फाइंड करके ही सेलेनियम को बताना है कि ये यूनिक फाइंड किया है मैंने पहले ही. आपको बस इस पे जाके एक्शन करनी है परफॉर्म. ओके, सो डू विद द प्रैक्टिस. ओके, आई होप सभी ने सेलेनियम सेटअप कंप्लीट किया होगा. अगर नहीं किया है तो प्लीज you can do it as early as possible. Okay, you already received 2 days after that session, Saturday Sunday. So आपने वो करना चाहिए था और नहीं किया होगा तो आज कीजिए. ओके, इफ यू विल डिले दिस स्लोली, जब सिलेबस या जो भी आगे जाएंगे कंसेप्ट तो आपको दिक्कत होगी लास्ट में. ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट वी कैन स्टॉप टुडे. कोई डाउट है? No, sir. No. Thank you. We will meet tomorrow. Okay.